Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اے میرے بندے جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بس خاص میری ہی عبادت کرو تم۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، البتہ ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت کے بالا خانوں میں، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ بہت ہی بہترین بدلہ اور اجر ہے عمل کرنے والوں کو۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ کافروں کو اور مشرکین کو اللہ پاک نے خطاب کیا، یعنی ان کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایمان والوں کا، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندے جو ایمان والے ہیں، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بس خاص تم میری ہی عبادت کرو، یعنی ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے، ہجرت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اسی ہجرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اللہ پاک نے دیا تھا کہ اپنا وطن مکہ کو چھوڑو اور مدینہ میں جاؤ۔ یہ ہجرت ہے، یعنی جب تمہیں اپنے علاقے میں لوگ تنگ کرتے ہوں، شریعت کے مطابق دین پر عمل نہ کرنے دیتے ہوں، سختی ہو، پابندیاں ہوں، تو پھر اس وقت وہاں پر تمہارا رہنا کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا وطن چھوڑو اور ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو۔ مکے کے اندر مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اذانیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، سر عام عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں پر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، قتل و غارت ہے، پریشان کرتے ہیں، لہذا تم مکے کو چھوڑو اور مدینے میں چلے جاؤ، وہاں پر تم تاکہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ پھر جس جگہ ہجرت کی جاتی ہے نا، وہ بھی دو قسم کی جگہیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے دار الحرب، ایک ہوتی ہے دار الحرب نہ ہو۔ دار الحرب یعنی ایسا ملک جہاں پر پہلے ہی مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہو، جہاں پر پہلے ہی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہو، لہذا ایسے ملک میں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ملک میں ہجرت کرنے کی اجازت ہے جہاں پر مسلمانوں کو تنگ نہ کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت ہو۔ تو ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے، ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہ عام طور پر گھروں میں بیٹھنے والوں سے ان کو زیادہ اجر اور ثواب ہے۔
मुहाजिरीन को जिन्होंने अपना वतन, घर बार, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़ा, अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ा अजर दिया है। फरमाया कि इबादत सिर्फ मेरी करनी है बस। अगर तुम्हें अपना वतन छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन इबादत सिर्फ मेरी करनी है। इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना बस। इन अर्ज़ी वासिआ, अगर तुम्हें अपने इलाके में नहीं करने देते इबादत, शिर्क पर मजबूर करते हैं, तो फिर अपना इलाका भी छोड़ दो, लेकिन अल्लाह का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह की इबादत नहीं छोड़नी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। तुम ये ना समझो कि हम वहाँ चले गए तो हमें मौत आ जाएगी, लोग तंग करेंगे, हम मर जाएंगे। मौत ने तो बहरहाल आना ही आना है, चाहे तुम अपने घरों में रहो, चाहे कहीं बाहर चले जाओ। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो यूँ भी फरमाया, वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत लोहे के किलों में भी बंद होकर बैठ जाओ, मौत वहाँ पर भी आकर रहेगी। मौत ने तो हर हाल में आना है, इसलिए मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ भी जाओ आखिरकार फिर भी अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से तुम भाग नहीं सकते हो। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत के लिए मुल्क भी छोड़ा, ईमान भी लाए। अब उस ईमान के लिए भी कुछ शराइत हैं। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान भी ले आए और अमल भी अच्छे करें। ईमान की निशानी क्या है? अच्छे अमल। अगर कलमा पढ़ता है ईमान वाला है लेकिन अच्छे अमल नहीं है, न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, न कुर्बानी है, कोई चीज़ भी नहीं है, बस ईमान वाला है, तो फरमाया ये ईमान भी मकबूल नहीं है। फिर ईमान के मकबूल होने की या ईमानदार होने की निशानी यही है कि फरमाया अच्छे अमाल भी हों। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को मस्जिद में जाने का आदी देखो, उसके ईमानदार होने की गवाही दो कि ये एक नेक अमल है, अल्लाह के घर में जाना, नमाज पढ़ना। तो नेक अमाल जो हैं ये ईमान की निशानी है। अगर ईमान है तो नेक अमाल की भी तौफीक होती है, ईमान ख़त्म हो जाए तो नेक अमाल की भी तौफीक नहीं होती। नेक अमाल के कबूल होने के लिए फिर 3 शर्तें हैं। नेक अमाल के कबूल होने के लिए 3 शर्तें हैं, यानी आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपकी ज़कात, आपके सदक़े खैरात, ये आपके कुर्बानियाँ, आपके हज, ये कब कबूल होते हैं? इसके लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, आदमी ईमानदार हो, उसके दिल में ईमान हो। अगर काफिर है, जितना भी नेक अमाल करता रहे तो उसको आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। काफिर अगर दुनिया में कोई नेक अमाल करता है तो उसको दुनिया में तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के नेकी को ज़ाय नहीं करता, उसका बदला ज़रूर देता है। वो दुनिया में नेकी जो करेगा उसको दुनिया में बदला तो मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आजकल गैर मुस्लिम की बड़ी तंजीमें हैं और वो बड़े रिफ़ाए आमा के काम करते हैं, रोडें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पतालें बना रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या मुसलमानों के ऊपर ख़र्च करते हैं। इतना बड़े रिफ़ाए आमा के काम कर रहे हैं, लेकिन बुज़ुर्गों इन नेक कामों का उनको दुनिया में तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आखिरत में उनके इस नेक अमल को कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरत में नेक अमल के कबूल होने के लिए एक शर्त है कि दिल में ईमान हो। अगर ईमान नहीं है तो फिर नेकी का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखें कि अगर काफिर आदमी है, दुनिया में कोई नेकी का काम करता है तो उसको दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात नहीं है। दुनिया में फ़ायदा है, दुनिया में उसको अल्लाह पाक उसका अजर और बदला दे देते हैं, आखिरत में कोई बदला नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी शर्त नेक अमाल के कबूल होने के लिए है इखलास। क्या शर्त है बुजुर्गों? इखलास, कि जो काम भी हो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, फिर तो नेकी कबूल होगी। अगर इसलिए सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, अस्पतालें बनवा रहा है, नेकी के काम कर रहा है ताकि लोग देखें और कहें कि यार वाह वाह बड़ा सखी है, हाँ जी बड़ा खर्च करता है, बड़ा गरीबों का ख्याल करता है, ये नीयत है, तो
تو فرمایا کہ پھر نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے ہاں جی یہ شرک، دکھلاوا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خفی فرمایا، چھوٹا شرک۔ قیامت والے دن اللہ پاک فرمائیں گے جا تیری نیکی کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، تو نے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکی کی تھی نا، چل جا تیری نیکی کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، انہی سے جا کر بدلہ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جو ہے نا اللہ پاک 3 لوگوں کو بلائیں گے، ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید۔ تینوں بڑے نیکی کے کام ہیں۔ عالم کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبادت کرنے والا آدمی ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم دین، سچا عالم دین سوتا رہے تو اس کا سونے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں جی عالم دین کا سونا بھی بہتر ہے۔ اور شہید کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، قیامت والے دن 70 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور سخی فرمایا کہ جو آدمی سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سخی اللہ کا دوست ہے۔ اتنا بڑے نیکی کے کام ہیں تینوں۔ قیامت والے دن اللہ پاک نا پہلے بلائیں گے سخی کو، فرمائیں گے ادھر آؤ، ہاں تم نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، بڑا مال دیا، غریبوں کو دیا، مدرسوں میں دیا، مسجدوں میں دیا، بڑا خرچ کیا ہے میں نے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے کس لیے خرچ کیا؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا تھا نا، آج تیری نیکی کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، جا ان سے جا کر لے بدلہ۔ جو تیرا مقصد تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ سخی کہیں، وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، آج تیری نیکی کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ فرمایا پھر عالم دین کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی اے اللہ میں نے اتنا سال مدرسے میں پڑھا، 10 سال 15 سال 20 سال دال کھایا، روکھی سوکھی کھائی، اے اللہ علم حاصل کیا، لوگوں کو دین سکھلایا، لوگوں کو نماز سکھلائی روز۔ اللہ پاک فرمائیں گے کس لیے؟ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے علم حاصل کر رہا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تیرا نام ہو اونچا کہ یار یہ بہت بڑا عالم ہے، تیرا مقصد پورا ہو گیا، آج میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو۔ تیسرے نمبر پر شہید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھائی اے اللہ تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، میں نے اپنی جان کی قربانی دی، جسم کے ٹکڑے کرا دیے، گردن اڑوا دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیوں؟ تجھے راضی کرنے کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا، جہاد کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بہادر ہے، بڑا ہاں جی پہلوان ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، نڈر ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، میرے پاس تیری نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ ان سے جا کر لو اور پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ بزرگوں دکھلاوا جو ہے نا، دکھلاوا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو دکھلاوا کر کے۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، پھر وہ آرام سے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یار بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے یہ تو، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے یہ تو، بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے یہ۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو پھر نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دوسری شرط نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے ہے کہ اخلاص ہو دل میں، اخلاص، کہ جو کام بھی کرنا ہے صرف کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک بات علماء نے لکھا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آ گیا، آپ نے مہمان کی خدمت کرنی ہے، مہمان کا اکرام کرنا ہے۔ فرمایا گھر میں آپ نے مرغی ذبح کر لی، مرغی ذبح کی صرف اس لیے تاکہ مہمان کو خوش کرنا ہے، مہمان راضی ہو جائے، ہاں جی، اس نیت سے تم نے مرغی ذبح کی، تو فرمایا یہ بھی دکھلاوا ہے،
तुमने ये नियत नहीं करनी, नियत को तब्दील करना है कि मैं इसलिए इसकी खिदमत कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मेरे महबूब की सुन्नत है, इस नियत से तुमने खिदमत करनी है। बाकी जब तुम खिदमत करोगे वो तो राज़ी होकर ही जाएगा, ये नियत नहीं करनी। अगर ये है तो फिर तो दिखलावा हो जाएगा, दिखलावा नहीं है किसी अमाल में भी। फरमाया अगर दिखलावा के लिए करेगा तो फिर वो उल्टा पकड़ का ज़रिया बन जाएगा, वो नेकी का सवाब नहीं मिलेगा। तीसरी शर्त है नेक अमाल के कबूल होने के लिए कि वो काम सुन्नत के मुताबिक हो, वो काम सुन्नत के मुताबिक हो। पहली शर्त क्या थी कि ईमान हो, दूसरी शर्त यह है कि इखलास हो, तीसरी शर्त यह है कि वो काम सुन्नत के मुताबिक हो। कोई भी नेकी का काम है अगर सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो फिर जितना भी बड़ा नेकी का काम हो उसका कोई सवाब नहीं। उलमा ने लिखा है एक आदमी है वाशरूम में जाता है, लैट्रीन में जाता है सुन्नत के मुताबिक कि पहले कौन सा पाँव अंदर रखना है और बैठना कैसे है, हाँ जी, फिर बाहर आता है सुन्नत के मुताबिक। और एक आदमी वो है जो हज करने के लिए गया हुआ है, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है, सफ़ा मरवा पे दौड़ रहा है, मुज़दलिफ़ा में, हाँ जी, फिर अरफात में वहाँ पर दुआएं कर रहा है, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के रो रो के अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो फरमाया फिर इस हज करने वाले से भी अल्लाह पाक उस आदमी को ज़्यादा अजर और सवाब देंगे जो वाशरूम में सुन्नत के मुताबिक जा रहा है और आ रहा है। सुन्नत की इतना कदर है, सुन्नत की बहुत बड़ी कदर है सुन्नत की। फरमाया कि एक आदमी है जो नफिल पढ़ रहा है और एक आदमी है जो जाकर निकाह वाली महफिल में बैठ जाता है, तो फरमाया उस नफिल पढ़ने वाले से निकाह वाली महफिल में बैठने वाले को ज़्यादा अजर और सवाब है, क्योंकि निकाह जो है नबी की सुन्नत है। नफिल तो नफिल है ना, लेकिन निकाह जो है मेरे महबूब की क्या है, अन निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सुन्नत का अजर और सवाब बहुत बड़ा है। जो भी काम करना है पहले देखना है कि मेरे नबी की सुन्नत क्या है। खाना है, पीना है, शादी है, गमी है, खुशी है, कोई भी काम है सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक होगा तो फिर तुम्हारा खाना भी इबादत है, तुम्हारा पीना भी इबादत है, सारे काम इबादत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने पूछा था ना कि तुम कितना इबादत करते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। उसने कहा क्या तुम रोटी नहीं खाते, क्या तुम तकाज़े के लिए वाशरूम नहीं जाते, क्या तुम कारोबार नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जो काम भी करते हैं, वाशरूम जाते हैं, रोटी खाते हैं, कारोबार करते हैं, जो भी करते हैं अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक करते हैं, तो अल्लाह पाक उस सुन्नत की बरकत से हमारे सारे कामों को इबादत बना देता है। जब सुन्नत के मुताबिक हो तो फिर वो काम इबादत बन जाते हैं। अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो फिर वो उल्टा पकड़ का ज़रिया है। तो बहरहाल बुज़ुर्गों, नेक अमाल के कबूल होने के लिए कितने शर्तें हैं? 3। नंबर 1 ईमान हो, नंबर 2 इखलास हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, नंबर 3 सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है कोई काम तो फिर उसका कोई अजर और सवाब नहीं है। मिसाल के तौर पर मकरूह टाइम शुरू हो जाए, कोई आदमी कहे कि मैं जो है इस टाइम में जो है ना नफिल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मकरूह टाइम में नफिल तो फजर की नमाज के बाद किसी किस्म का नफिल इशराक के वक़्त तक कोई नफिल नहीं पढ़ सकते। अब कोई कहे कि मैं जो है अल्लाह के साथ मुझे मोहब्बत होगी है, मैं तो जी नफिल पढ़ता हूँ, नफिल तो हैं उसके लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है, लिहाजा इसको सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। मिसाल के तौर पर इसी तरह मुसाफिर के लिए हुक्म है कि जब सफ़र में जाए 77 किलोमीटर सफ़र हो तो वो आदमी मुसाफिर बन जाता है। 15 दिन से कम रहने की नीयत हो तो फिर वो मुसाफिर है। अब मुसाफिर के लिए हुक्म है कि अगर अकेली नमाज पढ़ता है या इमाम भी मुसाफिर है तो वो 2 फ़र्ज़ पढ़े। 4 रकात वाले जो नमाज है 4 रकात फ़र्ज़ हैं, उनको 2 फ़र्ज़ पढ़े, सुन्नत नफिल उसको माफ़ हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़े। अगर वो कहे कि नहीं जी मेरे पास तो टाइम बहुत है, मैं तो पूरे 4 फ़र्ज़ पढ़ूंगा, मैं 2 नहीं पढ़ता हूँ,
फरमाया फमन ज़ादा फहुवा आसिन, जो आदमी ज़्यादा पढ़ेगा वो गुनहगार है। क्योंकि उसने नबी की सुन्नत की मुखालफत की है, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर दी उसने। इसलिए बुज़ुर्गों सुन्नत की बहुत बड़ी कदर है। सुन्नत के मुताबिक अमल होगा तो फिर अल्लाह के दरबार में कबूल है। अगर सुन्नत के खिलाफ है, जितना बड़े से बड़ा नेकी का काम हो अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। आप नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज नहीं है, नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब नहीं है। नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है? सुन्नत है। और कहाँ पर पढ़ना सुन्नत है? जब अत्तहियात में बैठे हों, अत्तहियात में बैठे हों उस वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। और कौन सी अत्तहियात? आखिरी अत्तहियात में बैठे हों। अगर कोई आदमी 4 रकात नमाज पढ़ रहा है और 2 रकात पढ़कर फिर तशहुद में बैठते हैं, अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़ा होना है, वो कहे नहीं यार मैं चलो दुरूद शरीफ भी पढ़ लेता हूँ, सवाब ज़्यादा कमा लूँ, कि दुरूद पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी एक दफ़ा दुरूद पढ़े तो 80 साल की इबादत का सवाब है, लिहाजा मैं दुरूद पढ़ के सवाब हासिल कर लूँ, बाद में खड़ा होऊंगा। तो क्या ख्याल है बुजुर्गों, क्या होगा? अगर आगे दुरूद पढ़ ले तो क्या हो जाता है? अगर उसने जानबूझकर दुरूद पढ़ा तो फिर नमाज ही नहीं होगी, टूट जाएगी नमाज। अगर भूल कर उसने आगे दुरूद पढ़ लिया तो उलमा ने लिखा सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजदा साहब। साहब का माना गलती, गलती का अय अल्लाह गलती किस चीज़ की है? पढ़ा तो उसने दुरूद है, अल्लाह उसने तो दुरूद पढ़ा, दुरूद पढ़ने का तूने हुक्म दिया, दुरूद पढ़ने का बड़ा सवाब बतलाया, अजर बतलाया, फिर गलती किस चीज़ की है? पढ़ा तो दुरूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया इसने गलती की है, इसने क्या किया है? गलती की है। अब जुर्माना लग गया कि 2 सजदे और ज़्यादा करेगा तो फिर रब इसकी नमाज कबूल करेगा। अगर इसने 2 सजदे और ना किए, जुर्माना ना अदा किया तो फिर नमाज भी कबूल नहीं है, क्योंकि इसने मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ पढ़ा। नबी की सुन्नत के जितना भी बड़ा नेकी का काम हो, अगर सुन्नत के खिलाफ हो बुजुर्गों, अल्लाह की दरबार में अल्लाह की दरबार में वही अमल कबूल है जो सुन्नत के मुताबिक हो। बहरहाल अल्लाह पाक ने फरमाया जो आदमी ईमान ले आए और अमल भी अच्छे करे, अल्लाह पाक उसको जन्नत के बाला खानों में ठिकाना अता फरमाएंगे। और वैसे बाला खाने फरमाया तजरी मिन तहतिहल अनहार, नीचे नहरें चल रही होंगी किस्मों किस्म की, हाँ जी, सरसब्ज बाग और शादाब होंगे। खालिदीन फीहा, फिर फरमाया कि वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, न बुढ़ापा, न बीमारी, न परेशानी, न कोई तंगी, न झगड़ा, न लड़ाई, न किसी चीज़ की कमी, न गालम गलूच, न बदमाशी, कोई चीज़ भी नहीं है, बदबू भी नहीं है, खुशबू ही खुशबू, जवानी ही जवानी, हमेशा ही हमेशा। आज कोई मुल्क का वज़ीर सदर बन जाए तो 5 साल के बाद उसकी बादशाही ख़त्म हो जाती है। जैसे खुशी होती है इसी तरह परेशानी भी लायक हो जाती है कि यार 5 साल के बाद तो मेरी बादशाही ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे ना, अल्लाह पाक उनको कहेंगे सलामुन, अब तुम्हें सलामती हो, हमेशा हमेशा जन्नत में रहो, कभी भी तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। निअम अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का बहुत ही अच्छा बदला और अजर है। बुजुर्गों, आज की नमाजें, सर्दी में वुज़ू, ये हाँ जी रात के अंधेरों में मस्जिदों में जाना, ये आप इनको बेकार ना समझें, ये बहुत बड़ा कीमती है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, खुदा की कसम। ये जब ये दुनिया वाली आंख बंद होगी ना, कब्र में जाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारी नमाज की कदर क्या है, ठंडे पानी से वुज़ू करने की कदर क्या है, अंधेरी रातों में मस्जिदों में जाने की कदर क्या है। उस वक़्त पता लगेगा जब ये दुनिया वाली आंख बंद होगी और कब्र में जाएंगे। दुआ फरमावें कि अल्लाह पाक हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमावें। तर्जमा देख लें, फरमाया वा या इबादी यल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदे वो जो आमनू ईमान ले आए हैं, इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून, बेशक मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, बस ख़ास तुम मेरी ही इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بزرگوں یہاں پر غور فرمائیں، اللہ نے فرمایا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک دیگ پکی ہوئی ہو نا دیگ، اس سے تھوڑا سا چکھ لے آدمی، ایک ہوتا ہے پوری دیگ ہڑپ کر جائے کھا جائے، وہ اور چیز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کو کھا جانا ہے، موت نے ختم کر دینا ہے، فرمایا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بس انسان ختم ہو گیا، آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی انسان کی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جو ہمیشہ والی آگے زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ فرمایا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ عملوا الصالحات، عمل بھی اچھے کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، فرمایا البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ عطا کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، چلتی ہے اس کے نیچے سے نہریں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، فرمایا عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا بدلہ اور اجر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق